So in the series of talks, now we have इसी श्रृंखला में हमारे साथ जो हमारे अतिथि जुड़े हैं प्रोफेसर अमर्त्य कुमार दत्ता. प्रोफेसर is a distinguished professor in StatMath unit at Indian Statistical Institute, Kolkata, holding a PhD degree in mathematics from University of Bombay. He has made significant contributions to algebra and commutative algebra, recognized with awards such as Professor Satish C. Bhatnagar Award and INSA Teacher Award. Professor Datta's expertise also extends to history of Indian mathematics as reflected in his numerous research papers and publications. Currently serving as a council member of International Union of History and Philosophy of Science and Technology, he continues to contribute to the field. Now I request Professor Datta to give us some insight about the today's topic. Thank you. धन्यवाद. आज एक पवित्र दिन है बंगाल में कि महासरस्वती देवी का पूजा हो रहा है. And I thank the organizers for giving me an opportunity to share some thoughts on this auspicious day about the decimal system, which is at the foundation of modern civilization. So, हमारे 20th century and early part of 21st century का one of the greatest Indian mathematicians is Sri Ram Abhyankar. तो उनका एक कविता है which begins with polynomials and power series, may they forever rule the world. तो ये polynomial and power series modern algebra और algebraic geometry में it's a very important concept, very basic as numbers 1 2 3 जैसे. तो आधुनिक मॉडर्न यूरोप में आइजैक न्यूटन एक पायनियर थे इन द स्टडी ऑफ पॉलिनोमियल एंड पावर सीरीज. एंड उनके 1000 साल पहले ब्रह्मगुप्त हैड स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन इंडिया. और माधवाचार्य न्यूटन इन लोग पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस लाइक sin x cos x स्टडी किए थे. तो पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल एंड पावर सीरीज हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया एंड फ्रॉम अराउंड द टाइम ऑफ न्यूटन इट केम इन अ बिग वे इन यूरोप. नाउ today's topic is decimal. तो why I am talking about polynomials and power series? क्योंकि hello so decimal expansion of numbers is based on the principle कि any natural number polynomial form में है. पॉलिनोमियल हम लिखते हैं x से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और डेसिमल x के जगह 10 से x10 का एक्सपेंशन है an 10 to the power n प्लस n minus 1 10 to the power n minus 1 etc. और डेसिमल हम लोगों को देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एक्सपेंशन. ये अलग करना है. वन इज द रिटन नोटेशन. हम कैसे लिखते हैं, जैसे 2108. This is something written. So 2108 is 2 into 10 cube plus 1 into 10 square plus 0 into 10 plus 8. और जब हम when we say it orally, जब हम बात करते हैं, नोटेशन का बात नहीं है, तब हम बोलते हैं 2108. तो so these are two forms of expansion. एक है कि written जो नोटेशन और जो oral nomenclature. तो ये कितना पुराना है ये? So decimal nomenclature, the oral way of expressing numbers in decimal, it had got started during the Vedic period. जो oldest जो literature है हमारे पास वो है Vedic literature. उसके सबसे old layer है ऋग्वेदा. ऋग्वेदा के टाइम में वो decimal nomenclature standard हो गया था. So it is older than ऋग्वेदा. कितना पुराना वो तो हमको अभी मालूम होने का कोई, क्योंकि उससे पुराना लिटरेचर नहीं है हमारे पास.
लेकिन वो जो रिटर्न नोटेशन जो है वो कब से चालू है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इट हैड गॉट स्टैंडर्ड इन बाय अर्ली इयर्स ऑफ कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जो एडी, एडी को आजकल कॉमन एरा बोलते हैं। इंडिया में वो इट हैड गॉट स्टैंडर्ड बाय अर्ली इयर्स ऑफ कॉमन एरा, और यूरोप में इट हैड गॉट स्टैंडर्ड इन 17th सेंचुरी में। न्यूटन का जो टाइम है उसके थोड़ा सा आगे। अभी वो जो पॉलिनोमियल एंड पावर सीरीज जो मॉडर्न अलजेब्रा और अलजेब्रिक ज्योमेट्री का फाउंडेशन है, दिस पॉलिनोमियल एंड पावर सीरीज ए कॉन्शियस जनरलाइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डेसिमल से इंस्पिरेशन लेकर ही पॉलिनोमियल और पावर सीरीज का I mean, those who worked in polynomial power series, they were inspired by the decimal expansion. And that is why you see कि Brahmagupta worked on the polynomials in 7th century and Newton worked in 17th century. तो ये 1000 years का difference क्यों है? क्योंकि Brahmagupta had grown up in a culture where decimal system was standard, and that became standard in Europe just before Newton. इसलिए this 1000-year difference. लेकिन that decimal has inspired polynomial. उनका is there any evidence for that? You can see it in the words of Newton himself. Newton बताए हैं, since the operations of computing in numbers, जैसे हम हमारा जो basic arithmetic जैसे करते हैं with in the decimal system, and with variables जैसे algebra करते हैं x के लेकर, x is a variable, x, y, z. ये तो so Newton says these are closely similar. So I was amazed that it has occurred to no one to fit the doctrine recently established for decimal numbers. Doctrine मतलब principle recently established for decimal numbers. मैं बताया ना कि just Newton के पहले decimal system had got established in Europe. तो न्यूटन को देख रहा है कि ये तो अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स तो रेडी है डेसिमल सिस्टम में, किसी को ये पता क्यों नहीं चल रहा है? सो to fit the doctrine recently established for decimal numbers in similar fashion to variables, especially since the way is then open to more striking consequences. So बोल रहा है कि अगर डेसिमल सिस्टम के ऊपर ध्यान कोई mathematicians, if they concentrate on the decimal system, they will get everything that has to be said about polynomials. So for since this doctrine of species has the same relationship to algebra that the doctrine in decimal numbers has to common arithmetic, its operation of addition, subtraction, multiplication, division and root extraction may be easily learned from the latter. तो कैसा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है पॉलिनोमियल का, वो जस्ट आप कॉपी कीजिए डेसिमल सिस्टम में जैसे करता है, उसको ही कॉपी करने से ही हो जाएगा. सो द थिंग इज यू कैन सी द डेप्थ ऑफ द decimal system, that the idea of polynomials is embedded there, dormant there. And this decimal system, which decimal system? It applies to oral also. जो वैदिक nomenclature जो था, उसके लिए भी न्यूटन के बाद applicable है. And you can see the immediate impact. जब यूरोप में डेसिमल सिस्टम चालू हुआ तो न्यूटन तो ये अब तो न्यूटन के बाद देखे हैं. Now you know that what is at the heart of the modern computer, the binary system, जिसे any number is written just in the terms of 2 digits, 0 and 1. So you can make it as on and off. You can think of it as on and off. That's why it is it led to the computer. So Leibniz is associated with the binary expansion of numbers, and you see Leibniz's time. He comes just after the decimal system was introduced. Decimal system became standard in Europe. So इधर लिखा है binary system is at the heart of the modern computer and computer-based devices. Numbers represented as a string of on and offs. Then
there is something called p-adic expansion of numbers, which was introduced by Hensel. That is also instead of 10. So binary system is instead of 10, you use 2. And in p-adic, instead of 10, you use p. So this is very powerful in modern number theory. And I was referring to Abhyankar, Sriram Abhyankar. Abhyankar himself has some expansion techniques in algebraic geometry, where he used something called G-adic expansion. हम लोग को what is G-adic expansion? Let us not get into it. लेकिन अभ्यंकर जो acknowledge किए हैं, the concept of a strict system of generators of a semi-group is the generalization of the idea of decimal expansion. और अभ्यंकर का time क्या है? 1970s में ये काम किए हैं. So even in 1970s, a mathematician in the frontier of the world of mathematics is taking inspiration from the decimal system. So you can see the power. और उनका जो famous Kyoto paper है, that is 100-page paper, उनका एक chapter का title ही है decimal expansion और एक chapter का title है polynomial expansion. So Abhi, let us take a close look at the two systems, the written and the oral. So every number, आपको मालूम है कि every number can be expressed with 10 digits. 1, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, these figures. Using the decimal place value principle. Place value क्या है कि value of a digit d in rth place is d into 10 to the power r minus 1. जैसे 2107 जब हम लिखते हैं और 2 लिख I mean just by writing 2 उसका वैल्यू हो जाता है 2000, मतलब 2 into 10 क्यूब. तो 2 इधर 2 लिखा है, राइट से फोर्थ प्लेस लिखा है तो वैल्यू हो जाएगा 2 into 10 क्यूब. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू. और 1 क्या है, 1 थर्ड प्लेस में है तो उसका वैल्यू होगा 1 into 10 स्क्वायर. So this is the idea of place value. तो ये जो डिजिट वो तो फिगर जो है उनको डिजिट बोलते हैं. तो ये डिजिट का क्या क्या फीचर है? एक फीचर है कि 1 सिंबल फॉर 1 डिजिट. जैसे ये सब डिस्टिंक्ट सिंबल है. इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए आप रोमन न्यूमरल्स को अगर याद है कि रोमन में जब 2 लिखते हैं तो दो मतलब 1 को 2 times लिख रहा है. So there is no separate symbol for 2. So it is 1 symbol for 1 digit. जैसे संस्कृत में 1 साउंड के लिए 1 सिंबल, जैसे क ख ग एक ही साउंड होता है. जैसे इंग्लिश में सी क भी हो सकता है, च भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन संस्कृत में क तो क. And each digit can be drawn in just one stroke, thereby imparting speed to the writing process. So decimal notation का एक चमत्कारी यह है कि it is something as an abstract mathematical thought, there is a brilliance which comes from the idea of place value, from the idea of 0, and from the principle 1 symbol for 1 digit. तो यह बहुत बढ़िया abstract mathematics है. So sometimes we classify two things, that this is something fundamental mathematics, abstract mathematics, and this is something very good applied thing. But this decimal system itself, decimal notation, this itself is a device of practical utility. So it will be difficult to find any other innovation which is itself a brilliant abstract idea as well as a device of practical utility. For Newton's laws of gravitation, let us say, oh, this is an abstract principle, and rocket is not an abstract principle. Rocket is some practical instrument. Like this is something which is itself abstract as well as some practical object. तो जैसे रोमन सिस्टम में 888 लिखने के लिए आपको 12 लेटर्स चाहिए, और 1 million आप just लिख नहीं सके in the Roman system.
बेबीलोन सिस्टम में उनका भी प्लेस वैल्यू का आइडिया आया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दे हैड ओनली टू बेसिक सिंबल्स, 1 for 1 and 1 for 10। तो जैसे कि अगर बेस 60 है तो 59 इज अ डिजिट, लेकिन 59 लिखने के लिए उनको 14 सिंबल्स का जरूरत था। सो दिस मेड द सिस्टम नॉट एज नीट एज द डेसिमल सिस्टम। और देखिए कि जो मैथमेटिक्स बड़े बड़े मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स थिंकर, they appreciated the decimal quite early, like early 19th century में Laplace, बहुत great mathematician, he explained it is India that gave us the ingenious method of expressing all numbers by means of 10 symbols, each symbol receiving a value of position as well as an absolute value। जैसे वो 2 हम लोग देख रहे थे कि 2 का एक वैल्यू है 1 + 1 2, दैट इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन 2 को राइट से 4th प्लेस में लिखा था, इसलिए उसका वैल्यू हो गया 2000। सो 2 वैल्यूज है, एक तो 2 जो है 2 वैल्यू, और दूसरा है कि पोजीशन से जो वैल्यू आ रहा है वो जैसे उस टाइम में था 2000। So it is India that gave us the ingenious method of expressing all numbers by means of 10 symbols, each symbol receiving a value of position as well as an absolute value। A profound, बहुत गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। अभी हमको बहुत सिंपल लग रहा है, which appears so simple to us now that we ignore its true merit। ये एक प्रॉब्लम है कि डेसिमल सिस्टम में क्या है वो तो बच्चे लोग भी सीख सकते हैं, वही उसका ब्रिलियंस है कि a very deep idea, लेकिन it is so simple। और ये सिंपल है इसलिए हम उनको उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये लैपलेस पॉइंट आउट किया। बट इट्स वेरी सिंप्लिसिटी द ग्रेट ईज विच इट हैज लेड टू ऑल कंप्यूटेशन, कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। आप रोमन सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करने का कोशिश किए, बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन वी डू इवन स्मॉल चिल्ड्रन कैन लर्न मल्टीप्लिकेशन वेरी इजीली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डेसिमल सिस्टम। It has led to all computation, puts our arithmetic in the first rank of useful inventions. And we shall appreciate the grandeur of this achievement the more when we remember that it escaped the genius of Archimedes and Apollonius, two of the greatest men produced by antiquity। तो ये नाम का ये significant है कि Greeks, unlike Indians, Greek mathematicians had neglected computations, the science of computations, लेकिन उसमें exception है, जैसे Archimedes was very far sighted, तो Archimedes wanted to have a good system of notation and computation, लेकिन the decimal system उनको भी ये माने even he had not invented it। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये कितना डीप इन्वेंशन है। सो सिंप्लिसिटी का वो जो सोशल कॉन्सिक्वेंस अब देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम का सिंप्लिसिटी के लिए बेसिक एरिथमेटिक आज ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे लोग सीख जाते हैं, और इतने जल्दी कैलकुलेशन सीख जाने से क्या हुआ है कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज अभी बहुत अर्ली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए उसका जो स्प्रेड, पहले क्या होता है कि जैसे ग्रीक टाइम में बहुत टॉप साइंटिस्ट एंड टॉप मैथमेटिशियन थे, लेकिन द नॉलेज वाज रेस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू। अब मॉडर्न यूरोप में जब डेसिमल सिस्टम आया, यू कैन सी that vast masses are getting literate even in science। तो ये जो नॉलेज का जो स्प्रेड के लिए, so this is something social consequence, ये डेसिमल सिस्टम का फंडामेंटल रोल है। और अगेन 20th सेंचुरी का वन ऑफ द टॉप मैथमेटिशियंस वैन डर वार्डन, जो ग्रुप स्ट्रिंग्स फील्ड्स जो पढ़ते हैं जिसको मॉडर्न अलजेब्रा कहते हैं, उनका फर्स्ट बुक लिखा है वैन डर वार्डन 1930 में। तो उस वैन डर वार्डन द आइडिया ऑफ जीरो को बताए थे अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। उनके भी पहले हॉलस्टेड, एक अमेरिकन मैथमेटिशियन, बताए थे कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द जीरो मार्क कैन नेवर बी एक्सेजरेटेड। सो डेसिमल नोटेशन का 3 आइडिया है, एक है प्लेस वैल्यू, जीरो
और 1 सिंबल फॉर 1 डिजिट। तो अभी जीरो के बारे में क्या क्या लाप्लास अब देखे थे कि प्लेस वैल्यू के बारे में बताए हैं। वैंडरवार्डन और हॉलस्टेड जीरो के बारे में क्या बोले हैं कि दिस गिविंग टू एयर इन नथिंग नॉट merely a local habitation and a name, a picture, a symbol, but helpful power. Power is the characteristic of the Hindu race whence it sprang. It is like coining the nirvana into dynamos. जैसे कि हमारा कल्चर में जो है कि you be silent, silently you do yoga and you get lot of power. तो वो जो आइडिया ही इज लिंकिंग विद दैट कि इट इज लाइक कॉइनिंग द निर्वाणा, जैसे कि योगी सिटिंग साइलेंटली हैज लॉट ऑफ पावर एंड कैन मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो जीरो जैसे वैसे ही एक चीज है कि इट्स लाइक समथिंग लाइक निर्वाणा व्हिच एक्ट्स लाइक अ डायनामोस। एंड इस जो कोटेशन है जो दिस गिविंग टू एयर इन नथिंग नॉट merely a local habitation and a name, a picture, a symbol, इधर एक एल्यूशन है शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम का एक पैसेज का, दैट द पोएट्स पेन टर्न्स थिंग्स इनटू शेप्स, गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम, उनका एल्यूशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वो जो जीरो के आई मीन देयर इज सो मच सेइंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो, पीपल हैव बीन फैसिनेटेड विद जीरो। वो सही है कि जीरो डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज, लेकिन it has also hindered the recognition of historical and mathematical significance of the oral decimal tradition. जब कोई डेसिमल सिस्टम का प्रशंसा करते हैं तो डेसिमल नोटेशन का प्रशंसा करते हैं जिसमें जीरो है, और जब आप ओरली डेसिमल सिस्टम का बात करते हैं तब जीरो का जरूरत नहीं है। तो वो कैसे कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, लेकिन ये गलत है। अब ये सोचिए दैट नॉमेनक्लेचर में क्या, नॉमेनक्लेचर का फीचर क्या है। ईच नंबर इज एक्सप्रेस थ्रू, जब आप ओरली नंबर बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि देयर आर सिंगल टर्म वर्ड्स, सिंगल टर्म, जैसे 1 2, इंग्लिश में 1 2 अप टू 9, हमारे हिंदी या संस्कृत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देयर इज अ सिंगल टर्म वर्ड फॉर ईच पावर ऑफ 10। सिंगल टर्म वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में 10 100 1000, लेकिन 1000 के बाद कुछ नहीं है। 10,000 इज नॉट अ सिंगल वर्ड, लेकिन संस्कृत में ये चलता है दश शत सहस्र अयुत नियुत, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो वो नोटेशन एंड नॉमेनक्लेचर दे आर इन कॉरेस्पॉन्डेंस, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें डिजिट्स correspond to single term words and place value corresponds to single term names for 10 to the power 8. जैसे 2107, 217, that 2, so it so you see 2 gets the value 1000 from its place at the 4th place. When you say it in words, that role of the place value is taken by that single word 1000. Similarly, 1, it is in the 3rd place. That place value's role was being played by 100. This will not happen if you don't have single term word. तो concept of zero as a placeholder इसमें जरूरत नहीं है जब आप orally represent करते हैं. Now, Swami Vivekananda had said the 10 numerals, मतलब ये decimal system, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉर्नरस्टोन है, पिलर है, दे आर इन रियलिटी संस्कृत वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? द डेसिमल सिस्टम इज इन रियलिटी संस्कृत वर्ड्स। तो डिजिट कैसा होता है कि ऐसा पिक्चर होता है, इसको बोलते हैं डिजिट, 1 2 3 दिस, और देयर आर वर्ड्स वेयर यू स्पेल 1 2 3। सो 10 न्यूमरल्स मतलब है डेसिमल सिस्टम। तो स्वामी विवेकानंद क्यों बोल रहे हैं कि डेसिमल सिस्टम इज इन रियलिटी संस्कृत वर्ड्स? तो ये आपको ध्यान रखिए कि नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल सिस्टम इन ऋग्वेद एंड इन ऑल वैदिक ट्रीटिसेस एंड इन ऑल सब्सिक्वेंट इंडियन टेक्स्ट्स। देयर वाज नो अदर बेस।
कहीं कहीं पर 100 base, there has been use of base 100, but by and large it is decimal system. Now in the Rig Veda, which is the oldest Veda, it has a single word terms for the 9 primary numbers: eka, dvi, tri, chatur, pancha, shat, shapta, ashta, nava. Then 9 multiples of 10 and powers of 10: dasha, shata, sahasra, ayuta. And the numbers are named by combining the above terms. जैसे ऋग्वेद में है सप्त शतानि विंशति. तो एक यजुर्वेदा का एक वर्स देखिए जिसमें पावर्स ऑफ 10 चल रहा है अप टू 10 to the power 12, और ये कैसे बिल्ड कर रहा है. एक दश, दश शत, शत सहस्र, शत, दैट मीन्स 10 शत इज सहस्र, सहस्र से अयुत, अयुत से न्यूत, न्यूत से प्रयुत, प्रयुत से अर्बुद, अर्बुद से न्यार्बुद, न्यार्बुद से समुद्र, समुद्र से मध्य, मध्य से अंत, अंत से परार्थ. Up to 10 to the power 12 is named in Medhatithi. And अब यह ध्यान रखिए कि there is a specific one word term for each power of 10 up to 10 to the power 12, और each term is perceived, that is defined to be 10 times the preceding term. तो क्या हो रहा है अभी? The digits correspond to the single term words and the place value corresponds to the single term names for 10 to the power n. अभी देखिए कि डेसिमल नोट जो वैदिक जो नंबर नेम था, that had set the stage और डेसिमल प्लेस वैल्यू नोटेशन के लिए. ये अब देखिए कि जैसे वो फुटबॉल में फॉरवर्ड आ रहे हैं, फॉरवर्ड आकर एकदम गोल बॉक्स में बॉल लॉब कर दिया, अभी गोल करना है. दैट गोल इज लाइक दिस डेसिमल नोटेशन. But before that, before a person has scored a goal, there is a build up कि कोई बॉल लेकर आकर उसके पास लॉब कर दिया. So you see decimal place notation, we were praising this, but you see how it derives very naturally from the Vedic number names. अगर वो जो number name का principle जब once somebody has understood, तो क्या करना चाहिए था? Suppress the place names for powers of 10. यह एक आइडिया का जरूरत था. और रिप्लेस वर्ड न्यूमरल्स एका, द्वि, नव एटसेट्रा बाय सिंबल्स, वन सिंबल फॉर वन डिजिट. और जहां पर पावर का कुछ नेम नहीं है वहां पर एक नया सिंबल लगा दीजिए जिसको जीरो सिंबल बोलते हैं. तो ये 3 आइडिया अगर मिलेगा तो डेसिमल प्लेस वैल्यू जो डेसिमल जो नोमेनक्लेचर जो है वैदिक नोमेनक्लेचर, उससे डेसिमल नोटेशन आ जाता है. जैसे 2108, अब 1000 को हटा दीजिए, 1000 को हटाकर और 2 के जो वर्ड है उसके प्लेस में आप एक सिंबल दीजिए, जो सिंबल. अब 100 वर्ड को हटा दीजिए और 1 के जगह में एक सिंबल बैठाइए, सिंबल प्लेस कर दीजिए. और 10 नहीं है इस नंबर में, इसलिए उधर 0 पुट कीजिए और 8 के जगह एक सिंबल, देन यू गेट दिस 2108. So the key to decimal place value notation lies in the Vedic Sanskrit number vocabulary. और वही स्वामी विवेकानंद इस इंसाइट दिए थे कि the 10 numerals, the very cornerstone of all present civilization, were discovered in India and are in reality Sanskrit words. आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जिस व्यक्ति और व्यक्तियां ये डेसिमल नोटेशन को इन्वेंट किया था, उनका थॉट प्रोसेस की ऐसा गया था कि या नहीं. तो वो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि we don't know who invented and what was his thought process. So let us be frank about it, that we don't know that. But to appreciate the value of the decimal nomenclature, you have to realize one thing, that it had set the stage for the notation. That you cannot deny. जैसे कि you see, you are seeing a replay, that you are seeing a footage, and you see that somebody has lobbed the ball into the box, and now it is really ready for the goal. उस टाइम पे के बाद कि क्लिपिंग कट हो गया,
and फिर you see a goal has been scored. Now you may argue कि वो जो लॉब किया था वो पास पकड़ नहीं I mean nobody could tap that, and later the goal was scored by some other ways. It is possible कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि वो जो लॉब किया उसके पास से ही गोल हुआ था, लेकिन द थिंग इज दैट द लॉब वाज फैंटास्टिक एंड रियली द गोल शुड हैव बीन स्कोर्ड. अबाउट दैट यू कैन नॉट डिनाई. तो फिर समरी कर रहा हूं कि डेसिमल, द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेसिमल नोटेशन एंड द ग्रेटनेस ऑफ इट्स टू आइडियाज, प्लेस वैल्यू एंड जीरो, हैव ऑफन बीन हाईलाइटेड. बहुत थिंकर, मैथ्स थिंकर प्लेस वैल्यू और जीरो को के बारे में बहुत कुछ यूलॉजी लिखा है, लेकिन वो जो प्लेस वैल्यू नोटेशन के बारे में ही लिखा है. एंड दिस फैसिनेशन विथ जीरो ओवरशैडोड द अदर aspects of the decimal system and hindered the due recognition of the historical and mathematical significance of the oral decimal tradition which goes back to the Vedic time. अभी फिर मैं पॉलिनोमियल के बारे में, I would like to return to the polynomial. तो आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n can be written in two ways. One is the standard way, an x to the power n plus an minus 1, x to the power n minus 1, etc., etc. That is right in terms of x. And here you don't have to write the coefficient if it is 0. And this is the more common one. But there is another way of writing that you don't write the x, but just collect the coefficients. So you write as ordered n plus 1 tuple, an minus 1, dot 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 a2 a1 is 0. और इस ऐसा लिखना है तो 0 को लिखना ही पड़ेगा. जैसे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये एक पॉलिनोमियल है. वो सेकेंड फॉर्म में लिखने से ऐसे लिखना पड़ेगा 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, फिर x का कोएफिशिएंट नहीं है, इधर कुछ नहीं लिखा था ऊपर में, लेकिन नीचे लिखना पड़ेगा 0 और 7. तो ये आपको क्या याद कर रहा है? डोंट यू सी द एनालॉजी? नंबर भी ऐसे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल सिस्टम इन टू वेज. 2000, that is a Vedic thing, 2107 or 2107. And you see now that when you see the analogy between the decimal and polynomial, the oral decimal system is actually closer to the usual polynomial representation. So by that you can see its value. Okay, I think since time is short, let me skip the previous page. Now, one thing I often hear कि एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में तो अभी सब कुछ निकल रहा है, पहले तो किसी को कुछ मालूम नहीं था. बट यू जस्ट नोट कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है जवाहरलाल नेहरू का, और जवाहरलाल नेहरू का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ही इज नॉट अ मैथमेटिशियन or a professor in a university. He didn't hold any academic position. He had a busy public life. तो जवाहरलाल नेहरू को जो पता था, without his being any mathematician or being a mathematics educationist, वो हम लोग को जो 1944 में जो उनको पता था वो हमको 2014 में या 2024 में पता नहीं है. This is something shouldn't we be ashamed of it. This is a question which bothers me when I see what he has written in 1944. In mathematics, the ancient Indians made some epoch-making discoveries, notably that of the zero sign of the decimal place value system of the. तो देखिए पहले ही वो zero and decimal से start कर रहे हैं. Then use of the minus sign, use in algebra of letters of the alphabet to denote unknown quantities. तो सब तो बता ही दिया है. So what is the excuse we have of not knowing these things? It is clear that the beginnings of arithmetic, algebra and geometry were laid in the earliest period. Earliest period के बाद. और इसका जो importance मैं जो बता रहा हूँ, अब देखिए कि जो प्रोफेशनल मैथमेटिक्स के बाहर से आ रहा है, स्वामी विवेकानंद बताए थे और जवाहरलाल नेहरू भी इसको एम्फसाइज कर रहे हैं. 10 form the basis of enumeration in India even at the time of the Rig Veda.
और अब देखिए मेधातिथि कितना बड़े नंबर के बात कर रहे थे, एंड दिस इज समथिंग नेहरू जी नोट किए हैं। द टाइम एंड नंबर सेंस ऑफ द एंशिएंट इंडियंस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे थॉट इन अ बिग वे, इवन देयर माइथोलॉजी, जिसको हम मजाक करते हैं, इवन देयर माइथोलॉजी डील्स विद एजेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो नेहरू इज अप्रिशिएटिंग कि that they were expressing big numbers, और इसका consequence क्या हुआ to them, to Indians, the vast periods of modern geology, कि जियोलॉजी जब बता रहा था कि हमारे जो टाइम स्केल बहुत है वो 4000 BC नहीं है, और द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स, वो भारत में उसका कुछ शॉक वैल्यू नहीं हुआ था। It didn't come as a surprise कि वो Indian culture had prepared them for big numbers. Whereas the popular mind in Europe was used to a time scale which did not go beyond a few thousand years. ये पंडित जी पॉइंट आउट कर रहे हैं। अच्छा, अभी डेसिमल में तो बताया था कि जो डेसिमल जो नोटेशन जो है वो कब से चालू हुआ हम लोग को पता नहीं है, लेकिन कहां कहां पर इसका उल्लेख है। महाभारत में उल्लेख है। महाभारत में एक डायलॉग है, नव यज्ञो गणना मेति शाश्वत, मतलब 9 ओ जीरो को उस टाइम में जीरो माने डिजिट काउंट नहीं किए थे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 डिजिट्स ऑलवेज सफाइसेस फॉर एनी काउंट, कि आप 9 डिजिट से 9 डिजिट और मीन कर रहे हैं जीरो, दैट इज अंडरस्टूड, वो आप जो भी नंबर है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस लाइन ये कब लिखा हुआ है? सी महाभारत पीपल जो स्कॉलर बताते हैं कि लेट अस से अराउंड द टर्न फर्स्ट सेंचुरी बीसी और उस टाइम में होगा, लेकिन बाद में कुछ लाइंस भी एडेड हुआ है, इंटरपोलेशन भी है महाभारत में। तो ये तो हमको पता नहीं है कि ये लाइन का एग्जैक्ट डेटिंग क्या है, लेकिन फैक्ट इज दैट द महाभारत डज हैव दिस लाइन। एंड उस जो कहानी, जो जिस कहानी में ये लाइन लिखा हुआ है उसमें ये सब नेम्स है, उद्दालक, श्वेतकेतु, अष्टावक्र, जनक, ये सब नाम का वैदिक एरा का नाम है, ब्राह्मण फेज का। और अब एक वर्ड भी है इधर शश्वत, दैट मीन्स इट हैज नुएंस ऑफ इमेमोरियल टाइम। तो फ्रॉम अ टाइम इमेमोरियल और 9 डिजिट से सब कुछ लिखा हो रहा है, ऐसा हिंट तो महाभारत में दिया है। पाणिनि में कॉन्सेप्ट है लोप, जो जीरो का एनालॉग है ग्रामर में। तो ये स्पष्ट नहीं है कि वेदर पाणिनि वाज इंस्पायर्ड बाय द मैथमेटिकल जीरो और पाणिनि's लोप इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स जीरो इन मैथमेटिक्स, और नन ऑफ द अबव, वो पता नहीं है, लेकिन इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। पिंगला 300 BC अनुमान है। He used the word shunya as a label along with dvi, that is 2. तो उनका जो चॉइस ऑफ लेवल ये सजेस्ट कर रहा है कि पिंगला का टाइम में जीरो सिंबल आ चुका था। फिर एक जैना टेक्स्ट देखिए 100 BC, उसमें प्लेस वर्ड है, जो प्लेस वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, मतलब स्थान, प्लेस का मतलब है स्थान, वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्थान उसमें बड़ा बताया हुआ है। और वो नंबर 2 to the power 96, 2 to the power 96 के बारे में बोल रहे थे कि इसको 29 स्थान में एक्सप्रेस करना है। अभी आप कंप्यूटर लेकर 2 to the power 96 कितना बड़ा है अब देखिए, यह सचमुच 29 डिजिट्स लगता है, और उसमें 0 डिजिट भी है। तो यह कि इससे हमको क्या फैसला होता है कि उस टाइम में प्लेस वैल्यू सिस्टम, डेसिमल प्लेस वैल्यू नोटेशन आ गया था। फिर देखिए वासुमित्र, एक बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, वो क्या कर रहे हैं कि प्लेस वैल्यू को एनालॉजी is be using it as an analogy. When the clay counting piece is in the place of units, it is denoted as 1. When in hundreds, 100. So similarly, अभी कुछ दार्शनिक वक्तव्य रख रहा है। तो देखिए यह कि मैथमेटिक्स का किताब नहीं है, फिलोसॉफी का किताब में डेसिमल सिस्टम को यूज कर रहा है एज एनालॉजी। तो ये तो साफ हो गया कि बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी the idea of decimal place value notation had occurred in India.
फिर एक बख्शाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनका जो ओरिजिनल वो उसका एस्टिमेट है 3rd सेंचुरी AD। जो ओरिजिनल जो है, जो कॉपी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उसमें डेसिमल नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जीरो सिंबल के लिए डॉट यूज कर दिया। एंड कितना बिग नंबर, लार्ज नंबर उधर लिखा है बख्शाली में, वो तो हम तो पढ़ नहीं सकते। आप देखिए इतना बड़ा नंबर बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है। तो आप इसको पंडित जी जो बताए थे, पंडित नेहरू, उनके साथ आप कंपेयर कीजिए। फिर वासावदत्त जो एक लिटरेरी वर्क है, उसमें क्या हुआ है कि स्टार को डिस्क्राइब कर रहा है शून्य बिंदु, तो मतलब जीरो सिंबल तो उधर है। फिर और एक योगा सूत्र जो पतंजलि, उनका जो कमेंट्री, उसमें अगेन एनालॉजी यूज किया है कि जस्ट एज द सेम स्ट्रोक कन्वेज डिफरेंट आइडियाज, सेम फिगर कन्वेज डिफरेंट आइडियाज एज अ यूनिट 10, 100,000 डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज पुट। सिमिलरली अभी कुछ प्रैक्टिकल कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज जे that it is being used, decimal place value is being used as an analogy। तो कितना कॉमन हो गया था कि फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में ये सब यूज कर रहे हैं एज एनालॉजी। Then in another Jaina text, this huge number has been described as 32, 2 zeros, 4 8 zeros, etc. Let me skip because time is running out. फिर अगर फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का, उसमें एक्सप्लिसिटली द आइडिया ऑफ ईच पावर ऑफ 10 एज अ स्थान ये मेंशन किया है। स्थान स्थानम दशगुणम शायद, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट इज 10 टाइम्स। और आर्यभट्ट का जो मेथड्स है, जो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का एक्सट्रैक्शन, उसमें प्लेस वैल्यू एंड जीरो हैज बीन स्ट्रांगली यूज्ड। और आर्यभट्ट इतना ब्रीफ है, बहुत संक्षेप में यह सब प्रोसेस डिस्क्राइब किया है। उससे यह पता चलता है कि यह तो उनका इन्वेंशन नहीं हो सकता है, अदरवाइज ही वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। सो डेसिमल प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड जीरो, इट हैड बीन फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इसलिए ही कुड अफोर्ड टू बी वेरी ब्रीफ। ओके, सो लेट मी स्किप दिस थिंग्स, क्योंकि अच्छा ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि एक नंबर्स कैसे, नंबर्स वेर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो एक सिस्टम था भूत संख्या सिस्टम। उसमें क्या होता था कि एन आइडिया और एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का संस्कृत है भूत, इलस्ट्रेटिंग द नंबर। जैसे चंद्र, कितना चंद्र है, एक ना, तो वन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय चंद्र व्हेन नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स। अर्थ एक है मही, तो मही मीन्स वन। आईज कितना होता है, नेत्र, इट कम्स इन पेयर, सो नेत्र मतलब है 2। गुना सत्व रज तमस, 3 हो, सो गुना मीन्स 3। युग सत्य त्रेता द्वापर कली, सो युग मीन्स 4, लाइक दैट। रस, देयर आर इन संस्कृत देयर आर 6 रस, सो इट इज 6। और जीरो को बहुत सिनोनिम्स है, ख, शून्य, पूर्ण, एटसेट्रा। तो जैसे भास्कराचार्य डिस्क्राइब्स हिज ईयर ऑफ बर्थ 1036 Saka era, which is common in AD, it is 1114 AD. तो 1036 is saying rasa guna purna mahi, क्योंकि 6 stands for rasa, so it is written in the reverse order: 6 for rasa, 3 for guna, 0 purna, and 1 mahi. Now this, the interesting thing is that this gives a poetic charm, क्योंकि रसा गुना पूर्णा मही का एक अलग मीनिंग हो रहा है, क्योंकि रसा ऑल्सो मीन्स डिलाइट, गुना मीन्स क्वालिटी, पूर्णा मीन्स फुल, एंड मही मीन्स अर्थ। सो वो जो उनका जो डेट ऑफ बर्थ जो है, सॉरी ईयर ऑफ बर्थ जो है, उसका एक स्वीट मतलब आ रहा है कि द अर्थ इज फुल ऑफ डिलाइट। लेट मी स्किप इट। कट्टापैदी, आई थिंक इफ यू हैड मोर टाइम तो मैं कट्टापैदी के बारे में आई वुड हैव talked, but let me skip that. But so Professor, we did see Kattapayadi and Aryabhatiya system also in one talk before. So okay, so I can skip that. Yeah. And so inscription जो है
उसमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है 6th सेंचुरी, लेट 6th सेंचुरी 595, जिसमें 346 डेसिमल प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखा है। और ये आप ख्याल रखिए, इंस्क्रिप्शन इज फॉर द जनरल मासेस, so inscription is not the announcement of invention. कोई कुछ इन्वेंशन करेंगे तो वो राजा इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे, इंस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ लिखेंगे जिसको सबको मालूम होना चाहिए उसका मतलब क्या है। That means that, so this only says that in 600 AD the decimal place value notation had become so standard that it could be used in inscription. फिर वो जो कैम्बोडिया में, इंडोनेशिया में संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें 0 डिजिट को भी मिलता है, और ग्वालियर में एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें 50 and 270 डेसिमल नोटेशन में लिखा है। अभी क्या सम एरर इज कमिटेड दैट वो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन को बहुत हाईलाइट करते हैं स्कॉलर्स, वो ठीक है 876, लेकिन उससे बहुत लोग को यह अंदाज होता है कि 876 में डेसिमल नोटेशन इन्वेंटेड हुआ है क्योंकि ग्वालियर में 270 लिखा है, एज इफ वो इन्वेंट किया और इंस्क्रिप्शन में 270 लिख दिया। तो ये आप ध्यान रखिए कि बच्चे लोग ये सब इडियोटिक नोशन उनके पास ना जाए। So, हाँ, हम लिखे हैं इधर, several centuries elapse before a new system of writing comes to common use in legal document like grant plate. जैसे वो गुर्जर कॉपर जो ग्रांट प्लेट है, दिस लीगल डॉक्यूमेंट। वो लीगल डॉक्यूमेंट में फैंसी चीज नहीं रहता है, बहुत स्टैंडर्ड होने से तभी वो लीगल डॉक्यूमेंट में पहुंचते हैं। तो डेसिमल सिस्टम का इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा बताएं कि this is the basis for the Indian methods and which is same as the modern methods for addition, subtraction, multiplication, division, root extraction, etc. पहले जो बताए थे कि it contains the seeds of the algebra of polynomials, and ये जो algebraic thinking है Indian mathematics में from Brahmagupta onwards, at least from the time of Brahmagupta, that was influenced by the decimal system. Decimal notation paved the way for the eventual recognition of zero as a number, not just as a placeholder. Zero को जो number का recognition ब्रह्मगुप्त ने दिए थे, उनका भी decimal notation would have helped in that. And decimal system के लिए जो large numbers बहुत आसानी से express कर सकते हैं, इनके लिए ही इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इतना एक्यूरेसी हुआ था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्यभट्ट जो साइडेरियल डे है, मतलब अर्थ कितना टाइम लगता है अर्थ को टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस और टू कॉन्सिक्यूटिव टाइम बिटवीन 2 स्टार राइजेस, वो टाइम 24 आवर्स नहीं है, वह है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.09 सेकेंड मॉडर्न एस्टिमेट, एंड आर्यभट्ट कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। ऐसे एक्यूरेसी उस 500 AD में कैसे हुआ था? एक कारण यह है क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स लाइक आर्यभट्ट दे यूज्ड वेरी लार्ज टाइम स्केल्स, जैसे 4320000 ईयर्स, और ये कर सकते थे क्योंकि डेसिमल सिस्टम था उनके पास। फिर एक जो आश्चर्य है कि इंडियंस हैड सॉल्व्ड फाउंड इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जैसे 61x² + 1 = y², इनका जो इंटीजर सॉल्यूशन, smallest integer solution इतना बड़ा है। Now this problem is mentioned by Bhaskaracharya in 1150. In Europe it comes only in Fermat. तो इसमें इसको आप एनालाइज कीजिए, इतना कुछ प्राइड के बात नहीं है, ये एनालिसिस के बात है कि क्यों फर्मा को ये आइडिया मिला था, उसके पहले क्या यूरोप में ये आइडिया नहीं आया था, लेकिन भास्कराचार्य को ये पास ये था क्योंकि भास्कराचार्य के पास डेसिमल सिस्टम था, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना उनके पास आसान नहीं था। फर्मा, न्यूटन, इनके पहले डेसिमल सिस्टम आया तो ये सब वो भी जैसे इंडियंस किए थे इतना बड़ा कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशन करना उनको पर प्रॉब्लम नहीं हुआ 17th सेंचुरी से, और वह भी ये सब करने लगा यूरोप। सो द डेसिमल सिस्टम मेड द डिफरेंस, and so it also gave a conducive environment for conceiving algebraic infinity. वो algebraic infinity एक अलग बात है, इंडिया में था वो,
We don't have time for that. लेकिन infinite series, ये सब के पीछे वो डेसिमल सिस्टम का हाथ है. डेसिमल सिस्टम के बारे में भारत के बाहर कितने पहले ये पहुंच चुका था. वो देखिए सीरिया में 7th सेंचुरी में एक सीरियन मंक क्या लिखे हैं. 7th सेंचुरी. आई शैल नॉट, और हम लोग का बुद्धू लोग बोल रहा है कि वो ग्वालियर में डेसिमल सिस्टम इन्वेंटेड हुआ था 876 में. 7th सेंचुरी में सीरियन मंक लिख रहा है, आई शैल नॉट नाउ स्पीक ऑफ द नॉलेज ऑफ द हिंदूज. अच्छा, एक बात ये one should clarify. So the word Hindu includes Hindu was a synonym for the Indians. So Hindu matlab it includes let us say the Jaina work and Buddhist work also, like Vibhutibhushan Datta and Datta Singh, History of Hindu Mathematics. और ऐसे हिंदू अलग करके कुछ नहीं है. हिंदू मतलब जैन, बुद्धिस्ट, all the ancient things are included. Ancient cultures are included. Ancient cultures in India. So I shall not now speak of the knowledge of the Hindus, of their subtle discoveries in the science of astronomy, discoveries even more ingenious than those of the Greeks and Babylonians, of their rational system of mathematics, or of their methods of calculation which no words can praise strongly enough. I mean the system using 9 symbols. Again, वो 0 को symbol count नहीं किया था, digit. फिर Spanish monastery में और एक monk 10th century में लिख रहा है the Indians have an extremely subtle intelligence, and when it comes to arithmetic, geometry, and other such advanced disciplines, other ideas must make way for theirs. The best proof of this is the 9 figures with which they represent each number, no matter how large. Acha, Al-Khwarizmi, Arab writer, he explained the decimal system, and it is interesting how he has explained it, but let me skip it. फिर यूरोप में Leonardo Fibonacci, he advocated the decimal system as early as in the early 13th century, and he said that all other systems are deficient compared to the Indian system. Quasi-Aranim, you can see his thing. Now there is an interesting picture called Margarita Philosophica of 1503, जो कंट्रास्ट कर रहा है कि ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम. तो ओल्ड सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव है पिथागोरस, जो ओल्ड सिस्टम में काउंट कर रहा है, तो बहुत परेशान लग रहा है. लेकिन जो न्यू सिस्टम में बोएथियस, हु वाज यूजिंग द इंडियन सिस्टम, उनको बहुत मजाक से कैलकुलेशन कर रहे हैं. और जो लेडी एरिथमेटिक वो बोएथियस के यू कैन सी कि दैट शी इज showing her approval or admiration for Boethius. यह है वो पिक्चर. अब देखिए कि राइट हैंड साइड में वो पिथागोरस ग्लूमी लुक, और यह है Boethius, वो इंडियन सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे हैं, और लेडी एरिथमेटिक इनके आई मीन हर अप्रूवल इज फॉर हिम, और इधर ये ही सीम्स टू बी लेफ्ट आउट. तो ये इंडियन को कोई फैलेटिक नहीं किया है. ये 1503 में यूरोप में ये पिक्चर मिल रहा है. तो रोमन न्यूमरल्स had got so deep rooted in Europe that it took 5 centuries. जो फिबोनाची इतना एडवोकेट किए थे अर्ली 13th सेंचुरी में, लेकिन टाइम लगा उसको एक्सेप्टेंस में. 17th सेंचुरी में वो स्टैंडर्ड हुआ. So its acceptance was one of the key factors. जो यूरोप में जो रेनेशा हुआ है उसका बहुत कुछ फैक्टर्स है. तो एक फैक्टर तो ये था कि introduction of the decimal system. Its acceptance was one of the key factors that triggered the commercial, mathematical, and scientific renaissance in Europe. It immensely simplified arithmetic and stimulated and accelerated trade and commerce, astronomy, and mathematics. और एक बात यह है कि यह जो decimal notation का जो idea, not only that is of Indian origin, even the notation, हम लोग जो 1, 2, 3 लिखते हैं, numerals are also of Indian origin. जैसे ये इफ्रा का किताब से ये पिक्चर लिखा हूं. नागरी में पहले ये था, वो फिर नागरी में ये 3 आया. वो 3 मॉडिफाई I mean it kept on getting modified and came to this modern 3. So this 3 is a modification of the Nagari 3. Like that, he has drawn pictures of how one thing got how the Indian numerals got modified to
the present numerals. ब्रिटिश हिस्टोरियन, उनका एक बहुत बढ़िया किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, उसमें वो ही हैज रिटन most of the great discoveries and inventions of which Europe is so proud would have been impossible without a developed system of mathematics, and this in turn would have been impossible if Europe had been shackled by the unwieldy system of Roman numerals. The unknown man who devised the new system was, from the world's point of view, after the Buddha, the most important son of India. So he is saying that the most important idea which came from India was what Buddha had given, and the next was this decimal system. इसमें एक बात यह है कि he thought that only one person invented it, but there are at least two layers. One जो बोल रहे हैं कि जो वैदिक nomenclature जो है, वो आइडिया किसको आया था in a very remote antiquity, that is also important, and then from that or even otherwise जो decimal notation का आइडिया जिसके पास आया था. So there are actually, it is not one person but at least two. अभी मैं एक कहानी बताऊंगा कि डेसिमल सिस्टम, ये जो हमारा जो फिलोसफी में इन मॉडर्न टाइम कैसे यूज की का एक प्रयोग दिखा रहा हूं. हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट sages of all time is Sri Ramakrishna. One of the greatest literary figures of all time is Bankim Chandra Chattopadhyay. So there was a conversation between Bankim Chandra and Sri Ramakrishna. So Indian darshan में तो यह है कि the universe is a manifestation of the one reality, and without the realization of the one Brahman, the transient universe is unreal, vacant, not. तो ये बहुत abstract लग रहा है ना. तो ये श्री रामकृष्ण कैसे एक्सप्लेन किए हैं, वो एनालॉजी दे रहे हैं जैसे कि मेनी जीरोस फ्रॉम अ लार्ज नंबर इफ प्रीसीडेड बाय वन, लेकिन अब वन हटा दीजिए तो कलेक्शन ऑफ जीरोस अमाउंट्स टू नथिंग. नाउ दिस ही यूजेस, श्री रामकृष्ण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बता रहे थे कि पहले गॉड, फर्स्ट गॉड, देन क्रिएशन एंड अदर थिंग्स. हम लोग क्या करते हैं कि पहले यह करेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री करेंगे, फिर गॉड बाद में देखा जाएगा. श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं कि फर्स्ट गॉड, देन क्रिएशन एंड अदर थिंग्स. क्योंकि इफ यू पुट 50 zeros आफ्टर वन, यू हैव अ लार्ज सम. वन के बाद 50 जीरो आप पुट कीजिए तो बहुत लार्ज सम है. बट इरेज द वन एंड नथिंग रिमेन्स. So one is the important thing. It is the one that makes the many. First one, then many. So first God. If it is God, then you have a huge wealth. Without God, it is Maya. So you see that this great idea in philosophy, that one of the greatest sages is explaining to one of the greatest literary figure through this, one of the greatest ideas in mathematics. So this I found very interesting. और एक कहानी में जस्ट 2 मिनट में एक कहानी बताऊंगा, क्योंकि यह बंगाल का बात है, आपको ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा. और ये तो गांधीनगर में आप सुन रहे हैं. तो 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन का जो रिजोल्यूशन हुआ था कांग्रेस में, तो उस टाइम में कांग्रेस का जो स्टॉलवर्ड्स थे, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दैट फॉर वेरियस रीजंस. वो हम तो अभी पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन द फैक्ट इज जो स्टॉलवर्ड्स थे, दे वर अपोज टू गांधी जो कर रहे थे वो खिलाफत के बारे में. तो जो रिजोल्यूशन, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दैट. लेकिन तो आपको मालूम है कि वो रिजोल्यूशन पास हो गया था. तो इसको एक बीरबल नाम का, प्रमोद चौधरी जो निकनेम था उनका बीरबल, ही रिपोर्टेड इट लाइक दिस कि वो जो रिजोल्यूशन था उनके फेवर में एक ही वोट था, मतलब गांधी, और उनके विपरीत में 999 थे. लेकिन वो एक जीत गया because that one was followed by many zeros. Followed by. So एक और उनका जो followers which are zeros, so एक with several zeros और 999 को बीट किया. तो ऐसे जो, so this is not in a text in mathematics. A journalist, I mean a literary person who is reporting an event और decimal system का analogy दे रहे थे.
Now I'll give you some reference. I've come at the end. तो ये सब जो मैं बताया सब कुछ है दत्ता एंड सिंह का हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 में, डेसिमल नोटेशन के बारे में फुल डिटेल्स उधर दिया है। और एक यह किताब भी बहुत यूजफुल है, इफ्रा का, बहुत पिक्चर्स है उसमें, द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। एक पिक्चर तो मैं 2 पिक्चर वहां से मैं तो दिखाया है। और मेरे एक आर्टिकल है डेसिमल सिस्टम के ऊपर में, जो एक एनसाइक्लोपीडिया में उसको मिलता है, 2015 का एक एनसाइक्लोपीडिया में मेरा डेसिमल सिस्टम के ऊपर एक समरी है। और मैं सीरियली मैथमेटिक्स के इन इंडिया के बारे में लिख रहा हूँ भावना में, फ्रॉम जनवरी 2022। तो उसका जो अप्रैल एंड जुलाई इश्यूज जो है, उसमें अप्रैल इशू में मैं वैदिक जो नोमेनक्लेचर के बारे में लिखा, और जुलाई में आई हैव रिटन अबाउट डेसिमल नोटेशन। फाइनली I just, you see, I'm now speaking from Sri Aurobindo Society in Pondicherry. So I quote end with a warning. So this is I found in Thoughts and Aphorisms of Sri Aurobindo. Break the molds of the past. कि past का जो outer जो shape है, outer जो form है, वो अभी relevant नहीं हो सकता है कि उसको अब you get out of that. But keep safe its genius and its spirit. Past का जो genius, past का जो spirit, उसको आप ध्यान से प्रिजर्व करिए। हम लोग उल्टा करते हैं कि जो फॉर्म्स उसको प्रिजर्व करते हैं, लेकिन जीनियस के बारे में बात करेंगे तो इरिटेशन होता है। लेकिन अगर नहीं करेंगे, वो जीनियस और स्पिरिट, इसको हम सेफ कीपिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? और एल्स दाउ हैज नो फ्यूचर। अगर नहीं करेंगे तो हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है। दिस वार्निंग इज फ्रॉम श्री अरबिंदो। सो विद दैट आई conclude. Thank you for listening. Thank you, Professor.